ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ اماں کے گھر میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آنے لگی تو نور بری طرح سے رونے لگی، کہنے لگی مجھے آپ ہی کے ساتھ ان کے گھر جانا۔ مگر اس وقت میری اپنی طبیعت سخت خراب تھی اور میرے لیے نور کی دیکھ بھال کرنا مشکل تھا۔ تبھی میں نے امی کو صاف انکار کر دیا کہ ابھی میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ مگر امی بھی یہ سن کر مجھ سے خفا ہو گئی کہ شادی کے بعد میں بہت بدل گئی ہوں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مجھے بالکل پیار نہیں رہا اور نور بھی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اسے گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور اکثر وہ چھٹیاں ننیال میں یا ددیال میں گزارنے کے لیے جاتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ 2-4 دن کی بات ہے، پھر اسے واپس چھوڑ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب بچی اتنے پیار سے اصرار کر رہی ہے تمہیں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ تب جیسے ہی میں پھر گھر میں داخل ہوئی تو میری جٹھانی کی نظر میری چھوٹی بہن پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ آنکھوں میں عجیب سا خوف ہلکورے لینے لگا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تو اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ کیوں لے کر آ گئی ہو؟ جٹھانی کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ وہ بھلا کون ہوتی تھی مجھ سے یہ بات کہنے والی؟ یہ میرا سسرال تھا، یہ میرا بھی گھر تھا، تو کیا میرے گھر میں میرے بہن بھائی نہیں آ سکتے تھے؟ میں نے ان کے تیکھے انداز میں یہی سوال کیا تو کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ایک بات کر رہی ہوں۔ میری ساس کو بھی نور کا یہاں پر آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی دبے لفظوں میں مجھے یہی کہنے لگی کہ پرائی بیٹی کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں لینی چاہیے، لڑکیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور یہ بالکل نازک آبگینوں کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے پر یہ ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، اس لیے ان معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کی الجھی ہوئی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر کہنے لگے کہ نور کہاں ہے؟ تم اسے ساتھ نہیں لائی تھی؟ تبھی میں نے انہیں کہہ دیا کہ میری ساس نے خود ہی کہا ہے کہ نور کو آج میرے پاس ہی سلا دو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے شوہر کے چہرے کے زاویہ بگڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ تمہاری بہن ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خود اس کا خیال رکھو۔ تبھی میں نے اپنے خیال کا اظہار شوہر کے سامنے کیا کہ آپ کے گھر والوں کو نور کا آنا اچھا نہیں لگا، آپ کی امی عجیب باتیں کر رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ابھی میرے شوہر کہنے لگے کہ امی کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لیا کرو، وہ پرانے خیالات کی مالک ہیں۔ ان کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور کنواری بچیوں کا اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر رہنا خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ 2-3 نور کے یہیں گزر گئے تھے اور میری ساس گاہے بگاہے مجھے کہنے لگی کہ نور کو واپس بھجوا دو۔ مجھے مگر ان کا یہ کہنا بہت برا لگتا تھا۔ آج شام جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے آتے ہی ان سے شکایت کر دی۔ ان کے چہرے پر بھی غصے اور برہمی کے آثار چھا گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں امی سے بات کرتا ہوں، وہ اب تمہیں اس بات پر نہیں کچھ بھی کہیں گی۔ کافی دیر کے بعد میرے شوہر جب کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ نور بھی تھی۔ کہنے لگی کہ آج اسی کمرے میں تمہارے ساتھ ہی سوں گی، تمہاری بہن ہے اور تمہیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نور بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ ابھی کچھ دن مزید یہاں رکنا چاہتی ہے۔ بچپن سے ہی نور میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ جب نور پیدا ہوئی تھی تو امی بہت بیمار رہنے لگی تھی، ان کا بخار ہی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے میں نور کو سنبھالنا، اس کا خیال رکھنا میرے ذمہ تھا اور اس وجہ سے نور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے جس قدر محبت کرتی تھی اتنی تو وہ امی سے بھی کبھی قریب نہیں تھی۔ اور پھر جب میری شادی ہوئی تو بہت ہی زیادہ روئی تھی۔ اس کے لیے میری جدائی برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ ہر روز فون کر کے مجھے اپنے گھر واپس آنے کے لیے اصرار کرتی اور تھوڑی دیر میں امی کے گھر چلی جاتی۔ میں روز وہاں پر رہنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن جب میں مائکے سے واپس آئی تو میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور تحمل سے مجھے کہنے لگی کہ بیٹی شادی کے بعد روز میکے جانا اچھا نہیں لگتا، وہاں تمہاری جوان بہنیں بھی ہیں اور تمہارے شوہر کا ان کے ساتھ کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ اسلام میں دیور بھابھی اور بہنوئی سالی کا بہت زیادہ پردہ ہے، کیونکہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے میں انسان کو کشش محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہاری بہنیں غلط ہیں اور نہ ہی میں اپنے بیٹے میں کوئی الزام دھر رہی ہوں، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ روز وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے۔ تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر ہی سمجھا رہی ہوں۔ مجھے اپنی ساس کی بات سن کر بالکل بھی برا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی یہ بات کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہے۔ اور پھر شادی کے 2 مہینے بعد ہی میرے پاؤں بھاری ہو گئے تھے اور اب تو روز میرے لیے بھی سفر کر کے میکے میں جانا آسان نہیں تھا۔ مگر نور اب میری وجہ سے بہت ہی زیادہ اداس رہتی تھی۔ کافی دن گزر جاتے تھے مجھ سے ملے ہوئے، اس وجہ سے اس کا دل چاہتا تھا کہ میں وہاں پر کافی سارے دن گزار کر واپس آؤں،
मगर मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। और अब जब नूर को स्कूल से छुट्टियां हुई तो उसने अम्मी से जिद करनी शुरू कर दी कि वो मेरे पास आकर रहना चाहती है। मैं अपनी सास की नाराज़गी के बावजूद भी नूर को यहाँ पर ले आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नूर बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी और मेरी सास उससे भला क्या खतरा था उसे। वो बार बार इस बात पे इसरार क्यों करती थी कि मुझे उसे वापस भेज देना चाहिए। मगर आज न जाने वो नूर मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। मेरे शौहर उसे कहने लगे कि आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा, चलो आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता हूँ। आइसक्रीम नूर की कमज़ोरी थी। चूँकि उसकी तबीयत मेरी कल से ज़्यादा ख़राब थी, मैंने जाने से इनकार कर दिया और वलीद कहने लगे कि आप नूर को साथ ले जाएं, जल्दी वापस आ जाइएगा क्योंकि ये जल्दी सो जाती है। मगर नूर ने जाने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं भाई के साथ नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। नूर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसे कहने लगी कि डर की क्या बात है, आप तो बहुत बहादुर बच्ची हैं और भाई तो आपके साथ जा रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। मैंने नूर की बात को आम से अंदाज में लिया था। इस वक्त मैं सोच ही नहीं सकती थी कि नूर के जहन में क्या चल रहा है। मगर उसकी आंखों में खौफ और सहमा हुआ चेहरा देखकर मैं कुछ भी नहीं समझी और उसे वलीद के साथ रवाना कर दिया। नूर जब वापस आई तो उसके हाथ में ढेर सारी चॉकलेट्स और खाने पीने की चीज़ें थी। उसके साथ साथ खिलौने भी थे और इतनी सारी चीज़ें देखकर उसे तो खुश हो जाना चाहिए था, मगर ना जाने क्यों वो बिल्कुल गुमसुम सी थी। मेरे बुलाने पर भी वो कुछ भी नहीं बोली और मेरे साथ लिपट कर लेट गई। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैं बेचैन हो गई। उससे कहने लगी कि क्या बात है, अम्मी याद आ रही है। वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे अम्मी के पास जाना है। अब की बार मैं हंस पड़ी और कहने लगी कि पहले तो तुम मेरे पास आने के लिए बेचैन थी, बार बार इसरार करती थी कि आप ही के पास जाना है। अब आ गई हो तो चंद दिन रहो, तुम्हें घर वापस छोड़ दूंगी। मैंने वलीद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखा था और उसकी दिलजोई करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मगर अगले दिन जब मैं उठी तो बार बार नूर इसी बात पर इसरार कर रही थी कि उसे वापस जाना है। मगर आज मौसम के तेवर बहुत ही खतरनाक थे। सुबह से ही मूसलाधार बारिश बरस रही थी। वलीद भी ऑफिस में थे। मैंने नूर को ये कहकर बहला लिया कि शाम को जब वलीद आएंगे तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। अब जब मेरी सास ने नूर को यूं बेचैन देखा तो परेशान हो गई। वो कहने लगी कि तुम्हें नजर नहीं आता तुम्हारी बहन कितनी परेशान और उदास है। तुम्हें उसकी उदासी का सबब मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। भला वो अपनी माँ के बगैर इतने दिन कैसे रह सकती है। अब जब मेरी सास ने रोजाना वाली बात दोहराई तो मेरी बर्दाश्त भी जवाब देगी। मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि न जाने क्यों आपको मेरी बहन का यहाँ पर रहना खटक रहा है। ये छोटी बच्ची आपका क्या खा जाती है। मेरा इतना ही कहना था कि वो अफसरदा हो गई और कहने लगी कि मैं जो कह रही थी तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, मगर शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मगर मजबूरी ये थी कि मैं तुम्हें खुलकर भी नहीं समझा सकती। और उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। भला ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझे बताना चाहती थी मगर बता नहीं पा रही थी। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो तब मौसम और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था और इस मौसम में ड्राइव करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। मगर नूर के चेहरे पर खौफ छा गया था और फटी फटी आंखों से मुझे देखे जा रही थी। तभी मेरे शौहर ने उसे अपने पास बुलाया तो वो मेरे साथ चिपक गई और कहने लगी कि मैं भाई के पास नहीं जाऊंगी, मुझे इनसे डर लगता है। मगर अब जब मैंने उसके चेहरे पर खौफ और हरास देखा तो मैं चौंक गई थी। मगर मेरे जहन में अजीब से खदशात लहराने लगे थे। लेकिन मैंने सोच लिया कि ये कहकर अपनी इस सोच को झटक दिया कि ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। भला मेरे शौहर से मेरी बहन को क्या मसला हो सकता है। वो तो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं और तभी मुझसे जुड़े रिश्तों से भी, इसलिए इनकी अहमियत के हामिल है। मैंने बहन को कमरे में वलीद के पास बिठाया और उसकी पसंद की नगेट्स बनाने के लिए किचन में आ गई थी। काफ़ी देर मुझे किचन में लग गई थी। अमूमन मुझसे इतनी देर खड़े रहकर काम करते नहीं होता था, मगर आज चूंकि मौसम ठंडा था इस वजह से मैं आराम से अपना काम कर रही थी। एक दो बार मेरी जेठानी ने मुझे टोका भी। मुझे कहने लगी कि मैं ये बना लूंगी तो अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपनी बहन को तसल्ली देनी चाहिए और न जाने क्यों वो इतना रो रही है। ऊपर से मेरी सास का भी कहना था कि बहू तुम्हें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। अगर तुम्हारी बहन किसी बात पर रो रही है, तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, तुम उसकी बात को समझो। तुम ना जाने क्यों इस कदर भोली हो, जमाने की चालों से ना वाकिफ हो। इन दोनों की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मैं जब अपने कमरे में आई तो नूर वलीद की गोद में थी और तभी मुझे देखकर नूर बुरी तरह से रोने लगी और वलीद भी बौखला गए थे। उन्होंने जल्दी से नूर की गोद को उतार दिया और मुझे कहने लगे कि मैं इसे चुप करवा रहा था, उसके आंसू पहुंच रहा था। मैंने वलीद के हाथ नूर के जिस्म पर रेंगते हुए देखे थे, जिसे देखकर मेरे वजूद पर भी जैसे चूंटियां रेंगने लगी थी। मैं हवास बाख्ता हो गई थी। ऊपर से नूर का कुछ कहता हुआ अंदाज मुझे चौंकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने वलीद को तो कुछ भी नहीं कहा और नूर को खुद से लिपटा लिया और उससे कहने लगी कि मैं कल होते ही तुम्हें घर ले जाऊंगी। मेरे दिल में तरह तरह के खदशात सताने लगे थे। मैं ये सोच कर परेशान हो रही थी कि जो मैंने देखा था वो क्या था।
क्या वो मेरा वहम था या सच था? मैं पूरे जी जान से कांप गई थी। नूर को मैंने अपने पास ही सुला लिया था, मगर मेरी अपनी रात आंखों में कटी थी। एक दो बार वलीद को भी मैंने बिस्तर से उठते हुए देखा था। वो इनसे पूछ बैठी कि क्या बात है, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आप इतने बेचैन क्यों हैं? तब वो बौखला गए। मुझे कहने लगे कि मेरे सर में दर्द है, इस वजह से नींद नहीं आ रही। घुटन का एहसास हो रहा है। काफी देर तक वो कमरे से बाहर टहलते रहे और अपनी सोचों में गुम रहे। अगले दिन भी मौसम खराब था और नूर की जिद कर रही थी कि अब घर जाना ही है। तभी मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह घूमा। मैं अपने शक को दूर करना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी बहन के साथ कभी भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर मेरी सास का कुछ कहता हुआ अंदाज, ऊपर से नूर का रोता हुआ चेहरा मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। तभी मैंने सोचा कि मुझे आंखें खुली रखनी चाहिए। मुझे अपने तौर पर यह मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि नूर वलीद से इतना भागती क्यों है, वो इनसे इस कदर क्यों डर रही है। तभी मैंने वलीद को कह दिया कि आप नूर को घर ले जाएं। नूर ने जब सुना तो वो अकेली वलीद के साथ जा रही है तो बुरी तरह से डर गई। मैंने जबरदस्ती उसे तैयार करके गाड़ी में बिठा दिया। उसे कहने लगी कि चुपचाप वलीद के साथ चली जाओ। तुमने वलीद वैसे भी शोर मचाया हुआ था कि अम्मी के घर जाना है, अब क्या हुआ है? जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले तो मैं भी चादर लेकर घर से बाहर निकल आई। मेरी सास और जेठानी समझ रही थी कि शायद मैं अपने शौहर के साथ ही जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, जबकि मेरे शौहर इस बात से वाकिफ नहीं थे। जैसे ही गाड़ी नजरों से ओझल हुई तो मैंने एक रिक्शा लिया और अपने चेहरे पर नकाब छुपा लिया और गाड़ी का पीछे करने लगी। मेरे दिल ही दिल में ये एहसास भी था कि अगर वलीद ने मुझे देख लिया तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ वैसा करने की कोशिश की तो क्या होगा। ये सोचना भी मेरे लिए सुहाने रोग था। तब मैं क्या करूँगी? क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगी या जिंदगी भर उनके साथ समझौते के साथ वक्त बिता दूंगी? मैं दिल ही दिल में ये दुआ भी कर रही थी कि ऐसा वैसा कुछ ना हो, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत हो, वलीद ऐसे बिल्कुल भी ना हो। तभी गाड़ी का रुख जंगल की तरफ मुड़ गया और फिर मैंने रिक्शे वाले को फासला रखकर इस तरफ चलने को कह दिया। यह सुनसान इलाका था, यहाँ पर लोग ना होने के बराबर थे। इस तरफ कोई भी नहीं आता जाता था। इससे आगे सिर्फ जंगल ही जंगल था और जंगल के दरमियान से एक कच्चा रास्ता निकलता था जो एक कच्ची बस्ती में जाता था। वलीद को जब मैंने इस तरफ जाते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई कि इस वक्त इनका यहाँ पर क्या काम था। तभी उन्होंने गाड़ी को एक घने झाड़ियों में रोक दिया था और फिर रिक्शा भी मैंने वहीं फासले पर रुकवा लिया था। इससे कहने लगी कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। अब मुझे खौफ सताने लगा था कि मुझे वही मंजर देखने को मिलेगा जो मैं कभी भी देखना नहीं चाहती थी। मैं जब गाड़ी के पास पहुंची तो मुझे नूर के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इसका मतलब था कि जो मैं सोच रही थी वो सच था। वलीद के बारे में जो मैंने अंदाज़ा लगाया था वो गलत नहीं था। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंची और जब खिड़की खोली तो वलीद खौफनाक तेवर लिए नूर को दबोचे हुए थे। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग जद पड़ गया था। वो बौखला के अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगे, मगर मैं अब इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने एक जोरदार चांटा उनके चेहरे पर रसीद कर दिया। उन्हें कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी हरकत करते हुए। ये छोटी बच्ची है और आपने इसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कि आप इतनी हवस में इस कदर अंधे हो गए कि आपको अच्छाई बुराई रिश्तों का भी तकद्दुस खत्म हो गया। नूर को लेकर मैं अम्मी के घर आ गई थी। जब अम्मी के पास आई तो उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। नूर को मैंने खास ताकीद की थी कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, और मैंने खुद भी अम्मी को ये बताया था और किसी के बारे में बताने से कुछ भी नहीं कहा था। सब लोग इस हकीकत से नावाकिफ थे, मगर मैंने कॉल करके अपनी सास को ये सब जरूर बता दिया था। तब मेरी सास गहरी सांस लेकर कहने लगी कि मैं तो पहले ही तुम्हें इस सब से रोकती थी। मैं जानती थी कि तुम्हें अपने शौहर की हकीकत मालूम होगी तो तुम्हें दुख होगा। मैं इसीलिए नहीं चाहती थी कि तुम इस तकलीफ और दुख से गुजरो। इसका मतलब था कि मेरी सास अपने बेटे की फितरत से वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे की फितरत पर पर्दा डाला और मुझे उसके लिए ब्याह कर ले गई। मैं अब सबसे ही बदजन हो गई थी। यहाँ पर रहते हुए मुझे 1 महीना का अरसा गुजर गया था। मेरे शौहर ने मुझसे बार बार बात करने की कोशिश की, मगर मैंने कभी इनकी कॉल नहीं ली। और मेरी सास और जेठानी भी मुझसे मिलने के लिए आई, मगर मैंने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। घर वाले सख्त हैरान थे कि आखिर मुझे क्या हुआ था, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ खुशबाश जिंदगी गुजार रही थी। नूर का सहमा हुआ चेहरा देखकर उदास आंखें, मुझे शर्मिंदगी होती थी। ये सब मुझे समझाने की कोशिश थी, मगर मैंने बगौर नहीं किया और जिद पकड़कर बैठ गई। अगर इस वक्त मैं अकेले में नूर से इसके डर की वजह पूछती तो उसे इत्मीनान में लेती तो आज नूर को इस हादसे से नहीं गुजरना पड़ता। एक दिन मेरी सास ने बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में है, सीरियस हालत में है।
बार बार वो मेरा नाम पुकार रहे हैं और तब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। अम्मी अब्बू के साथ जब मैं अस्पताल पहुंची तो अपने शौहर की हालत देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। इन्हें इस कदर तकलीफ में देखने का मुझ में हौसला नहीं था। तब मेरे सारे शिकवे शिकायत नाराजगी दम तोड़ गई थी। और फिर अपनी सास की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि मेरे शौहर छोटी उम्र में बुरी सोहबत में पड़ गए थे। उनके सर से बाप का साया उठ गया था, जिसकी वजह से रोक टोक ना होने के बायस वो गलत लड़कों की सोहबत में उठने बैठने लगे थे। इनकी वजह से वो गलत कामों में मुलव्वस हो गए थे, जिनमें छोटी बच्चियों के साथ गलत कार्य करना भी शामिल था। पहले पहल तो मेरी सास इस सब वक्त से नावाकिफ थी, मगर जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने अपने बेटे पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और फिर उन्हें अपनी कसम देकर इस सब से दूर रख लिया। और फिर एक बार पुलिस के में मेरे शौहर के इन दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो जेल में कैद थे, चूंकि मेरे शौहर की सारी गंदी सोहबत खत्म हो गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मामूल पर भी आ गए और बुरी सोहबत से भी जान छूट गई। उन्होंने अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दिया था, मगर अभी भी उनकी नज़र में छोटी उम्र की बच्चियों को देखकर हवस जागने लगती थी, क्योंकि आदतें अगर पुख्ता हो जाएं तो आसानी से नहीं छूटती। मेरी सास अपने बेटे से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, इस वजह से वो चाहती थी कि मैं नूर को कभी इनके पास अकेले ना छोड़ूं। वो जानती थी कि छोटी बच्चियों को देखकर वो बेकाबू हो जाते हैं। एक दो बार उन्होंने मेरी जेठानी की खानदान की बच्चियों के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर मेरी जेठानी और सास ने मौका पर पहुंचकर इन बच्चियों की जान बचा ली थी। इसलिए मेरी सास ने इनकी शादी करने में जल्दी की थी, ताकि शादी के बाद वो बदल जाएंगे और अपनी इस रविश से बाज आ जाएंगे। मगर मेरी मोहब्बत और वफादारी भी इन्हें बदल नहीं पाई थी। मगर अब इस एक्सीडेंट ने इन्हें सत्ता पैर बदल कर रख दिया था। उन्होंने बहुत वक्त तक खुद को बेबस पाया था। वो अपनी मर्जी से ना तो चल सकते थे, ना उठकर बैठ के कुछ खा पी सकते थे। वो पानी तक पीने के लिए दूसरों के मोहताज थे और उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था। इसी वजह से उन्हें अपनी तमाम गलतियों और कोताहियों का एहसास हो गया था। उन्हें लग रहा था कि उनके गुनाहों की सजा अल्लाह ताला ने इस सूरत में उन्हें दी है। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि जो कुछ हो गया मैं उन्हें माफ़ कर दूं। आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कभी। एक तो वो मेरे शौहर थे, मैं इनसे मोहब्बत करती थी, और दूसरा उनकी आंखों में सच्चाई थी, और मैं इन्हें इस गुनाह पर मज़ीद शर्मिंदा करके तनहा नहीं कर सकती थी, जिस गुनाह पर वो खुद नादिम थे। अल्लाह ने अब मुझे भी बेटी की रहमत से नवाज दिया था। इस बात का असर ये हुआ था कि मेरे शौहर जब भी किसी बच्ची को देखते थे तो उनकी अपनी निगाहें झुक जाती थी। उनकी नज़र में भी इन बच्चियों के लिए वैसे ही एहतराम छलकने लगता था, जैसा कि अपनी बच्ची के लिए उनकी आंखों में नजर आता था। मैं रब की बहुत शुक्रगुजार थी कि मुझे बेटी से नवाजा, क्योंकि एक बेटी के बाप को एहसास होता था कि शहरों में मैं जो कुछ दूसरों की बेटियों के साथ करता हूँ वो कल को उसकी बेटी के साथ भी सब हो सकता है। अब अली नमाज पढ़ते हैं तो देर तक दुआ करते रहते हैं। मेरे पीछे पूछने पर बताते हैं कि अपनी बेटी की नसीब से डरता हूँ और अल्लाह से उसके अच्छे नसीब की दुआ करता हूँ कि जो कुछ माजी में मैंने किया मुझे माफ़ कर दे। अपनी सास के कहने के मुताबिक मैं जब भी मैं के अपने जाती वलीद मुझे बाहर छोड़कर चले जाते थे। नूर बहुत गुस्सा और खौफ के ज़ेरे असर रही और बीमार हो गई थी। इस वजह से अब उसके सामने वलीद का नाम भी नहीं लिया जाता। वो तो खौफज़दा हो जाती थी। कभी कभी मैं अपने बुजुर्गों की बड़ों की नसीहतों और तल्ख बातों सुननी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए भलाई पोशीदा होती है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी बेटी के साथ साथ सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन।